Okay, so it's day 45 and today we'll be solving this minimum weighted subgraph with the required paths. So एक बार क्वेश्चन तुम खुद से ही पढ़ लेना क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है. सो व्हाट वी हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन इज बेसिकली तुम्हें एक ग्राफ दिया है, एक डायरेक्टेड एजेस का वेटेड सबग्राफ एक ग्राफ दिया है. एंड व्हाट यू हैव टू डू इज़ तुम्हें इस ग्राफ में से एक सबग्राफ सेलेक्ट करना है. सो सपोज जैसे इन्होंने यहाँ पे ये वाला सबग्राफ सेलेक्ट किया. सो व्हाट दिस सबग्राफ शुड कंटेन इज they have given you three nodes, that is the source 1, source 2 and the destination. Whatever subgraph you select, उसमें से it should be possible to go from source 1 to the destination and source 2 to the destination, and the weighted the जो तुमने subgraph select किया है उसका जो weight होना चाहिए that should be the minimum possible. So two conditions: you have to select a subgraph, the weights of the subgraph should be the minimum possible given that from the given source 1, from the given source 2, you can reach the destination easily. That's the whole question. And format is simple. तो मैं edges दिया which is a source, destination and the weight. You are given three nodes, the source 1, the source 2 and the destination. So ये obvious है कि ये जो source 1, source 2 और destination है ये इस subgraph के part होने ही वाले. So this is the question basically. ठीक है. Now how do you solve this? So before solving this, इसमें एक बहुत अच्छा algorithm use हुआ है, Dijkstra algorithm. तो एक बार ही पढ़ लेना how that whole algorithm works. It is I like that algorithm is actually used for, it is also called single source shortest path. What this means is एक single source से like given a graph, तुम्हें कोई भी एक graph दिया है जैसे, ठीक है, कोई भी graph दिया है, so given a source, single source, you can find the shortest path to all the nodes in the graph in an efficient time complexity. So given a source node, you can find the minimum time or -1 अगर तुम नहीं पहुंच सकते. So minimum time to reach all the possible nodes in that graph. And how do you find that, वो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा. That's a whole different concept. मतलब code also have written in that way that you will have to black box for like black box that concept for now. ये डायस्त्रा वाला यहाँ पे ये कोड कैसे इंप्लीमेंट होता है, हाउ दिस वर्क्स, एक बार ये टेकडोज का वीडियो देख लेना, और देर आर मेनी अदर वीडियोज विच यू कैन वॉच. तो एक बार वो देख लेना. सो ठीक है, Dijkstra I won't be explaining, but as like I'll tell you what Dijkstra gives you because that is important for this question. So let's start. So how do you solve this with Dijkstra? So as I said, Dijkstra actually gives you the single source shortest path. So अभी एक बार समझते हैं what exactly do you mean by single source shortest path. So suppose ये एक array लेते हैं. Okay. So what this 0, 3, 2, 5, 7, 6 actually indicates is this is actually the single source shortest path for the source 1. For the source 1 of the first example. ये वाला जो example है ना, इसमें source 1 if you see it is actually 0. तो जब मैंने Dijkstra लगाया मुझे एक ऐसा array मिलेगा. What this array actually indicates is, एक मिनट, what this array actually indicates is if you see 0 से, our source 1 is 0 right, source 1 is actually 0. तो 0 से लेके 0 तक का डिस्टेंस, दिस इज 0 1 2 3 4 5 द इंडिसेस. ठीक है, सो 0 से लेके 0 तक का मिनिमम लाइक द शॉर्टेस्ट पार्ट इज 0. 0 से लेके 1 तक का, दैट इज इफ यू सी 0 से इफ आई ट्राई टू गो टिल 1, दैट इज दिस पाथ एंड दिस पाथ, द मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज 3. So that's why you have a 3 over here. Similarly, if you try to go from 0 to 2, it is a single straight path 0 to 2, so that's why you have a 2 over here. Similarly, for 3, 4, 5, it will always give you the shortest path to go from this source 1 to any node. So Dijkstra actually takes two arguments, that is from like what's your source node and तुम्हारा ग्राफ क्या है, एंड फिर वो तुम्हें एक ऐसा वेक्टर रिटर्न कर देगा. लाइक आई हैव रिटर्न दैट वे कि वो तुम्हें ऐसा वेक्टर रिटर्न कर देगा. But you can modify Dijkstra your way too, but this is what my code does. So given a source node and given a graph, it will actually give you a vector which actually indicates कि उस source से लेके बाकी nodes तक क्या क्या distances है, the shortest path. ठीक है, why this is important अभी देखते हैं. सो जब इस क्वेश्चन में तुम्हें बोला था कि तुम्हें एक ऐसा सब ग्राफ ढूंढना है जहाँ से तुम सोर्स 1 से डेस्टिनेशन तक पहुँच सकते हो, सोर्स 2 से डेस्टिनेशन तक पहुँच सकते हो, एंड द weight included should be minimum. So what you'll try to do is you will always try to get a common path. What I mean by that is, suppose this was your source 1, this was your source 2, this was your source 2. Suppose कुछ ऐसा ग्राफ है, ठीक है, ये तुम्हारा डेस्टिनेशन है, एंड सपोज यहाँ पे ले लो बीच में और भी थोड़े नोड्स है. ठीक है, बीच में और भी थोड़े नोड्स है. सो व्हाट यू ट्राई टू डू इज़ यू विल ऑलवेज ट्राई टू इंक्लूड दिस पर्टिकुलर पाथ. सो बेसिकली तुम्हारा एम रहेगा कि यू ऑलवेज वांट सम कॉमन पाथ्स, ताकि तुम्हें बार बार वो ऑपरेशन चलना ना पड़े, एंड तुम्हारा ये जो ग्राफ का जो वेट है वो फालतू का तुम्हारे आंसर में ऐड नहीं होना चाहिए. तो बेसिकली यू वांट टू सिलेक्ट एन आइडियल सबग्राफ, एंड आइडियल सबग्राफ सिलेक्टिंग एक्चुअली मीन्स दैट कि तुमने एक ऐसा
सब ग्राफ सेलेक्ट किया जिसमें एक बहुत अच्छा कॉमन पाथ है विच इज़ नॉट एडिंग द आंसर ट्वाइस. दैट्स योर एम, राइट? सो हाउ डू यू डू दैट? सो सपोज ये सोर्स 1 है, ये सोर्स 2 है, एंड दिस इज़ अ पॉइंट सी. दिस सी मतलब लाइक वो समझ लेना बाद में, दिस इज़ अ पॉइंट सी एंड दिस इज़ योर डेस्टिनेशन. So assume that you know the path from C to destination and you know that it exists कि C से लेके destination तक जाना is possible and you suppose तुम्हारा C से लेके destination तक यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, the cost is 6. Now all you have to check is, तुम्हें suppose ये डेटा मिल गया कि C से लेके destination तक जाने का path है 6. All you have to check is कि SRC 1 से C तक जाने का कितना cost है, SRC 2 से 6 लाइक C तक जाने का कितना कॉस्ट है. एंड हाउ डू यू चेक दैट? यू विल रन 2 डायस्ट्रास, वन ऑन SRC 2 एंड द ग्राफ एंड वन ऑन SRC 1 एंड द ग्राफ, एंड यू विल देन हैव द हैंडल ओवर कि SRC 1 से लेके C तक जाने का मुझे कितना कॉस्ट लग रहा है. हाउ डू डू दैट? लाइक इफ़ यू यहाँ पे भी इफ़ यू सी मैंने ग्राफ बनाया है. ये रेव वाला पार्ट अभी मत समझना, ये एक अच्छा ट्रिक है दैट विल यूज़ इन दिस प्रॉब्लम. फॉर नाउ इफ़ यू सी मैंने ये 2 कॉल्स किए. SRC 1 से एक बार कॉल किया, दैट माई सोर्स इज SRC 1 एंड गिव मी दी सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ वेक्टर फॉर SRC 1, सॉरी SRC 2, देन सिमिलरली फॉर SRC 1. दोनों का मैं सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ का वेक्टर लेके आ रहा हूँ. सो ऑब्वियसली आई वुड ऑल्सो हैव कि SRC 1 से C तक जाना पॉसिबल है या नहीं है, एंड इफ इट्स पॉसिबल व्हाट्स द मिनिमम कॉस्ट टू रीच C. दीज 2 थिंग्स आई वुड ऑलवेज हैव. ठीक है. वंस यू हैव दैट देन यू कैन ईजिली कैलकुलेट. सपोज यहाँ तो हमें मिल गया 7, यहाँ तो हमें मिल गया 8, तो ये 7 + 8 + 6 जो है दिस इज़ एक्चुअली द आइडियल आंसर गिवन दैट तुम C को लाइक C से डेस्टिनेशन तक वाले पाथ को कॉमन पाथ सिलेक्ट कर रहे हो. बट देयर कैन बी मल्टीपल कॉमन पाथ्स, राइट? देयर कैन बी मल्टीपल कॉमन पाथ्स. सो हाउ डू यू हैंडल दैट नाउ? ये जो मल्टीपल कॉमन पाथ्स वाला सीन है. सो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि हर नोड से डेस्टिनेशन तक जाने का कितना टाइम लग रहा है. लाइक अभी अभी हमने ये C सिलेक्ट किया, पॉसिबल है कि ये भी एक C है, कि मतलब ये वाला पाथ भी मैं कॉमन पाथ ले सकता हूँ. सिमिलरली पूरे ग्राफ में बहुत सारे कॉमन पाथ्स होंगे. मतलब ये जो C नोड हमने सिलेक्ट किया, हमें इस पर एक इटरेशन लगाना पड़ेगा कि ठीक है, मतलब जैसे ये भी एक नोड हो सकता था ये, और ये इधर आता और ये वाला मतलब SRC 1 भी यहाँ पहुँच जाता, SRC 2 भी यहाँ पहुँच जाता, ये भी एक कॉमन पाथ हो सकता है. सो ये कॉमन पाथ्स वाला लॉजिक हाउ डू यू चेक? सो व्हाट यू डू इज़, अभी तुम्हें ये चेक करना पड़ेगा ना, ठीक है, ये वाला पार्ट हटाते हैं. अभी तुम ये चेक करते जो हमने इनिशियल एक चीज़ अज्यूम की थी दैट वी हैव C से लेके डेस्टिनेशन तक का पाथ. तो वैसे तो एक और नोड होगा, मुझे यहाँ से सपोज ये D है, मुझे यहाँ से लेके भी डेस्टिनेशन तक का पाथ पता होना चाहिए. आई कांट डू सिंगल सो शॉर्टेस्ट पाथ ऑन ऑल दी नोड्स, राइट? जस्ट टू चेक कि वहाँ से लेके डेस्टिनेशन तक पहुँचना पॉसिबल है या नहीं. यू कैन नॉट डू दैट. सो व्हाट यू विल डू इज़ यू विल रिवर्स द होल ग्राफ. And how will that help? So what if you do this? ये you reverse the whole graph. Like जो भी edges थे ना, तुमने पूरे सारे edges को reverse कर दिया. Still this is like SRC1, this is SRC2, this is your destination. Now what you'll do is you will run a single source shortest path on the destination. And तुम्हें इससे क्या मिलेगा? तुम्हें बेसिकली ये मिल जाएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक जाने का, दिस लाइक दैट्स नॉट अ नोड, तुम्हें यहाँ से लेके यहाँ तक जाने का कितना इज़ द शॉर्टेस्ट वैल्यू, एंड ये वाला जो वैल्यू है दैट इज़ एक्चुअली इक्वल टू यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचना. सो व्हेन यू डू अ सिंगल सो शॉर्टेस्ट पाथ ऑन डेस्टिनेशन बट ऑन अ रिवर्स ग्राफ, यू विल गेट कि बाकी नोड्स से डेस्टिनेशन तक पहुँचने तक का व्हाट्स दी वैल्यू. लाइक तुम्हें जब तुम डेस्टिनेशन से सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ लगाओगे, तुम पूरे ग्राफ को रिवर्स कर दोगे, सारे एजेस रिवर्स कर दोगे, तुम्हें अभी हर नोड के पास अगर उसका वैल्यू -1 नहीं है या लॉन्ग मैक्स नहीं है, इन माई केस यू वुड गेट कि वहाँ से लेके डेस्टिनेशन तक जाने का कितना प्राइस है. देन वंस यू हैव दैट, दिस होल एल्गोरिथम लगाना काफ़ी सिंपल हो गया. अभी हर नोड में जाओ, चेक कि वहाँ से लेके डेस्टिनेशन तक जाने का क्या कॉस्ट है. सपोज 6 आया, अभी चेक करो कि SRC1 और SRC2 जिस पे तुमने इंडिविजुअली सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ लगाया था, वहाँ से लेके C तक पहुँचने का क्या कॉस्ट है, मिनिमम कॉस्ट. एट दैट इज़ अ पोटेंशियल आंसर, एंड देन फाइंड द मिनिमम आंसर. सो इफ़ यू सी, मैंने एक एडजेसेंसी लिस्ट तो बनाया ही है जो बेसिक ग्राफ वाला. आई ऑल्सो मेड अ रिवर्स ग्राफ. सो यहाँ पे तो EL0 डॉट पुशबैक EL1 हो रहा है, यहाँ पे EL1 डॉट पुशबैक EL0 हो रहा है. दैट इज़ द ग्राफ इज रिवर्स, नथिंग एल्स. एंड जब मैं ये सोर्स डेस्टिनेशन लगा रहा हूँ ना, आई एम सेंडिंग द डेस्टिनेशन जहाँ से मुझे सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ रन करना है, एंड मैं ग्राफ रिवर्स वाला भेज रहा हूँ, ओरिजिनल ग्राफ नहीं भेज रहा. देन इट्स वेरी सिंपल. व्हाट वी आर डूइंग इज़ फॉर एवरी ग्राफ चेक कि वहाँ से डेस्टिनेशन तक पहुँचना पॉसिबल है क्या.
इफ़ पॉसिबल है चेक करो कि तुमने अभी जो नोड सेलेक्ट किया, जहाँ तुमने चेक किया कि वहाँ से लेकर डेस्टिनेशन तक पहुँचना पॉसिबल है, चेक करो SRC1 और SRC2 से वो वाले नोड तक पहुँचना पॉसिबल है क्या. Again the same logic, if it's possible, that is a potential path, that is a potential subgraph, and it is also effective because you were actually aiming to get a common tree, a common thread in the graph, a common path in the graph, and then just simply add that answer, like just try minimizing the answer, because this is a potential subgraph, this is the weight of a potential subgraph. And in the end अगर तुम्हारा आंसर ही अपडेट नहीं हुआ है तो रिटर्न अ -1, अदरवाइज रिटर्न एन आंसर. ठीक है, दैट्स ऑल. बट ये डायस्ट्रा एक बार पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये 2 वीडियोस, दिस इज़ लाइक ही विल एक्सप्लेन यू हाउ दिस डायस्ट्रा वर्क्स. सेकंड पार्ट इज़ द कोड इम्प्लीमेंटेशन एंड द ड्राई रन ऑफ डायस्ट्रा. एंड बहुत सिंपल कोड है, बट हाउ इट वर्क्स, वाई इट वर्क्स, जस्ट टेक अ लुक एंड देन यू कैन जस्ट अप्लाई डायस्ट्रा 3 टाइम्स एंड यू विल हैव द सोल्यूशन. ठीक है, दैट्स ऑल. अगर लाइक इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड डायस्ट्रा, लेट मी नो, आई विल मेक अ वीडियो. दैट्स ऑल. बाय बाय.